নমস্কাৰ এভৰিৱান আমাৰ চেনেল সংগিনীলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আহকচোন আপোনালোকৰ লগত এটা সৰু ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰোঁ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ পিতৃপক্ষ চলি আছিলে সেই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ জিজ্ঞাসা হ'ল কি পিতৃপক্ষত আমি সকলোৱে গয়াজিত কিয় যাব লাগে আৰু গয়াজিত এনেকৈ কি ৰহস্য লুকাই আছে য'ত আমি গ'লে আমাৰ পিতৃ আমাৰ এনচেষ্টৰৰ পৰা আমি ব্লেছিং পাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ জীৱনটো আমি সুফল মংগল কৰি তুলিব পাৰোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গয়াজি অহা যোৱা আমাৰ এপ্ৰক্স 2000 কিলোমিটাৰ জাৰ্ণি হৈছে বাই ৰোড গুৱাহাটীৰ পৰা গয়াজি যাবলৈ 3টামান ৰুট আছে এটা হৈছে আপোনাৰ কিষাণগঞ্জ হৈ যাব পাৰে আপুনি তাৰে ৰাস্তাটো কিন্তু আপুনি সিমান এটা ভাল নাপাব আমি বাৰিষা কালত গৈছিলোঁ পিছলৈ চাগে সেইখিনি ঠিক হ'ব পাৰে আপুনি আৰু এটা ৰাস্তা ল'ব পাৰে পাটনা মুজফ্ফৰপুৰ হৈ যাবলৈ সেই ৰাস্তাটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আৰু আমি যোৱা ৰাস্তাটো হৈছে আৰাৰিয়া পূৰ্ণিয়া বেগুচৰাই হৈ চ' সেই ৰাস্তাটো সৰুও পৰিছে তাৰে লগত ৰোড কণ্ডিশ্যনছ আমি যোৱা সময়খিনিত ভালে আছিলে কিন্তু বাই ৰোড গ'লে আপুনি আৰু এটা কথালৈ সাৱধান হ'ব লাগে পিছলৈ কিবা হয় আপুনি ভিডিঅ'টো কেতিয়াবা চাইছে কিন্তু আলিপুৰদুৱাৰ আৰু কোচবিহাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেচ থাকে বাই ৰোড সেইখিনি ৰাস্তা কিন্তু খুবেই বেয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছে চ' বাই ৰোড গ'লে আপুনি সাৱধান হৈ যাব লাগিব জাৰ্ণিটো লৈ খুবেই এক্সাইটেড মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড একেবাৰে 12 ঘণ্টা ড্ৰাইভ কৰি গৈ পালোঁ আৰাৰিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজটো আৰাৰিয়াৰ আছিলে ইয়াতে বাৰু 1 আৱাৰ ৰেষ্টিঙো আছিলে 12 আৱাৰ্ছ ড্ৰাইভিঙৰ মাজত মই আৰাৰিয়াৰ হোটেলৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰে আগতে কৈ লওঁ হোটেলটো খুবেই ধুনীয়া তেনেকুৱা এটা জেগাত ইমান ধুনীয়া ডিচিপ্লিন চাফা আৰু মেনেজমেণ্টটো বহুত ভাল তাৰে খানাও বহুত টেষ্টি আছিলে মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডটো খুবেই এনজয় কৰিলোঁ এই জাৰ্ণিটো আপোনালোকেও এই হোটেলটোতে যাব পাৰে এই কোনো প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' নহয় কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাৱে খুব এনজয় কৰিছোঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ हेलो गाइस ये अररिया बस स्टैंड के निकट है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के जस्ट नॉर्थ साइड और इस होटल का नाम है होटल वंदना एंड यम्मी टम्मी रेस्टोरेंट तो ये NH27 है अभी ये पहले तो 57 था अभी NH27 है NH27 में यदि आप सिलीगुड़ी की तरफ से आ रहे हो दरभंगा की ओर जा रहे हो तो राइट साइड में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए नमस्कार प्रणाम नंबर पे 9334211383 पे कॉल कर सकते हैं मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ 9334211383 আজি জানেনে নেক্সট ডে নীতিশ মোৰ ওপৰত খঙে কৰিছে এলাৰ্মটো লগাই শুব দিছিলে আৰু মই শুয়ে থাকিলোঁ আগৰ দিনা ইমান ভাগৰি গৈছোঁ এক্সাইটেড কিন্তু ভাগৰটো লাগিবই বাৰু এতিয়া আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলোঁ প্লেনিংটো 4টা বজাতহে ওলোৱাৰ আছিলে কিন্তু জাৰ্ণিটো আমি 7টা বজাতহে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাইছোঁ আহকচোন আগলৈ কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ আজি গয়া যাই পাওঁনে নাই সেইটোৰো নাই ঠিক বাৰু আজি জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ইয়াতে চাওকচোন ৰাস্তাবোৰ কি ধুনীয়া দুপিনি গ্ৰীনাৰী হৈ আছে একদম ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল ইয়াতে দেখিছেনে টেম্পুৰ ওপৰতে কিমান বহাই ৰাখিছে নট ৰেকমেণ্ডেড কিন্তু এনে দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক ইমান মানুহ বহাই ৰাখিছে টেম্পুৰ ওপৰতে মাজে মাজে এনেকৈ অলপমান পাব হাইৱেৰ মাজত সৰু সৰু বজাৰ 5 মিনিটছ 10 মিনিটছৰ ষ্ট্ৰেচ থাকে আৰু অলপ সৰু সৰু বজাৰ তেনেকৈ পাব হাইৱেৰ মাজত বাহিৰত জাৰ্ণি কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে খোৱাৰ বেকআপটো লৈ যাব লাগে আমিও বহুত কিবা কিবি লৈ আহিছিলোঁ ফল লৈ আহিছিলোঁ ব্ৰেড লৈ আহিছিলোঁ তেনেকৈ বহুত কিবা কিবি লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আমি পেট্ৰল পাম্পত গাড়ীত তেলো ভৰালোঁ লগতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ যেনে ৰাস্তাৰ ওপৰতে মানুহবোৰ আছে বানপানীৰ কাৰণে ইহঁতৰো বহুত লোকচান হয় বেয়াও লাগিছে কিন্তু কি কৰিব আৰু নেচাৰেল কেলামিটিছ আমি সকলোৱে সতৰ্ক হ'ব লাগে আৰু পাৰিলে তেনেকুৱা মানুহবোৰক হেল্প কৰিব লাগে
আমাৰ লাঞ্চ ব্ৰেকটো আমি বেগুচৰাইত ল'লোঁ আৰু বেগুচৰাইত আপোনাৰ কুণাল হোটেল বুলি এটা কুণাল ধাবা কুণাল ধাবা বুলি এটা ধাবা আছে, তাতে আপোনালোকে খাব পাৰে। তাতে আমি ভিন্দি ফ্ৰাই আৰু দম আলু ল'লোঁ, ইমান টেষ্টি। ইয়াৰে মানুহ অকণমান স্পাইচি খায়, কিন্তু তথাপিও খানাবোৰ খুবেই টেষ্টি। তাৰে মাজত আপোনালোককতো পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ, ছেশ্যনবোৰ বুক কৰি আছিলোঁ, তাকে নীতিশে মোক জোকাইছে, ফুৰিছোঁও লগতে কামো কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি গংগা ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰি আছোঁ, ইয়াতে মেইনটেনেঞ্চৰ ৱৰ্ক চলি আছে ব্ৰিজত। এনেতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ কিমান শুৱনীয়া হয় আৰু পথাৰৰ মাজে মাজেদি এই ৰাস্তাবোৰ গৈছে, ইমান ধুনীয়া চাবলৈ, চাবতো পাৰিছেই চাগে। কিন্তু ইয়াতে আমি স্পীডত বহুত কণ্ট্ৰল ৰাখিব লাগে। খুব বেছি স্পীডত গাড়ী চলালে ইয়াতে ৰাস্তাতে গৰু ছাগলী, ইনফেক্ট এতিয়া বাৰিষা কালৰ কাৰণেতো মানুহো ওপৰতে আছে ৰাস্তাত, তে সেই বস্তুটো সাৱধানে চলাব লাগে। বৰ্তমান আমি গয়াজী মুকম্মা ৰোড ভায়া বনগংগা গৈ আছোঁ। এইটো ৰোডত আহিলে কিন্তু আপুনি প্ৰায় হেভেন যেন ফিল কৰিব। ইয়াতে ইমান ধুনীয়া লেণ্ডস্কেপ, ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী, মইতো চাই একেবাৰে লাগি গৈছোঁ। বাছ আৰু কি, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি আহি পালোহি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বিষ্ণুপদ টেম্পল, ফাল্গু ৰিভাৰ, গয়াজী, বিহাৰ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 4টা বজাত আমি আহি পালোহি ফাল্গু ৰিভাৰ। ৰাতিপুৱা 3টাতে উঠি ফ্ৰেছ হৈ আমি ইয়ালৈ আহি পালোঁ। ইয়াতে পণ্ডিতজীয়ে গোটেই বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিয়ে থৈছিলে অলৰেডি। ইয়াতে জানেনে, ৰামজী আৰু সীতা মাতা আহি নিজৰ দেউতাৰ পিণ্ডদান কৰিছিলে। ইয়াৰে ডিটেইল কাহানীবোৰ ভিডিঅ'ৰ আগকলৈকে আছে, ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব। गया जी का क्षेत्र है, वो 5 कोस में पिंडदान कहीं भी आप एक जगह करें या 45 जगह टोटल वेदियाँ होती है, ठीक ना। तो 45 जगह करें, महत्व एक ही है। और यहाँ पहला जो वेदी है वो फल्गु है, फल्गु उत्तर मानस आपको बगल में तालाब है, उस साइड का उत्तर मानस कहलाता है। फिर आपका विष्णुपद, 16 वेदी, अक्षयवट और सीताकुंड, गयालोल, प्रेसिला, ब्रह्मकुंड, राम सरोवर, बैतरणी, बहुत सारे और भी जगह हैं जो पिंडदान करने की जगह है। और जगह जगह पर लोग जाकर के पिंडदान वहाँ भी करते हैं। इसकी मान्यता है कि अगर जो यहाँ पिंडदान करते हैं उनके पूर्वजों का भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और गयासुर नाम का जो राक्षस था, अपने तपोबल से भगवत को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके और वरदान मांगा था कि हमें शुद्धता का वरदान दीजिए और दर्शन मात्र से जो है लोगों को स्वर्ग जा सकते हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, और उनको दर्शन मात्र से लोग स्वर्ग जाना चालू कर दिए। उसके बाद ज़्यादा जब स्थिति डगमगाने लगी तो सारे देवताओं ने एक जगह मीटिंग की और बोले किस तरह इनको शांत किया जाए, गयासुर को। फिर भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया कि इनको छाती के ऊपर जग किया जाए और उनको शांत किया जाए। फिर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग यहाँ पे आए और गयासुर का जो शरीर है मांगे, और उसने गयासुर ने बोला कि हाँ मैं वचन देता हूँ कि जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। तो भगवान ने बोले कि आपका शरीर चाहिए, क्योंकि आपका शरीर ऐसा शुद्ध कोई जगह नहीं है और आपके शरीर के ऊपर मैं जग करना चाहता हूँ। जब शरीर पर जग होने लगा तो उस जगह 16 वेदियाँ भी हैं जो भगवान शिव का बहन मानी जाती है। 16 खंभा हैं, उस जगह भगवान शिव का वो बहन है, उनको स्थापित की गई। उसके बाद सारे देवी देवता ऋषि मुनि सारे लोग आए और यज्ञ स्टार्ट हुआ वहाँ पे। जब यज्ञ समाप्ति के समय था तो वह फिर पुनः खड़ा होने लगा गयासुर, और उसने भगवान विष्णु से मुक्ति का वरदान मांगा कि आप तो भगवान जा रहे हो, लेकिन हमारे जो आपका जो पद है और जो चिन्ह है वो हमारे पास होनी चाहिए, आप यहीं पर रहेंगे, ठीक ना। उसके बाद उसी जगह उनको मुक्ति देने के लिए भगवान ने अपना चरण जो है उनके छाती पे दबाया और अपने गदा को उनके पास रखा। वही चरण जो है वहाँ पर पत्थर पे जो शिला पे है
वो छप गया एक पद का। वो शिला यहीं पे हाँ, वो शिला आगे आपका विष्णु पद है, विष्णु पद, जिसको विष्णु पद मैंने पैर होता और भगवान विष्णु का पैर वहीं पे है। उसी बगल में गया सिर है, गया सिर जो गया सुर का जो माथा है उसी बगल में है। और आपका प्रेतशिला तक इसका कार्यक्रम चलता है। और जो यहाँ पिंडदान का तब वो गयासुर ने वरदान मांगा था कि हमें 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान जो है, यहाँ जो पिंडदान करे उनकी जो पूर्वजों का मुक्ति हो और वैकुंठ गौलोक को प्राप्त करे, अपने धाम को प्राप्त करे। दूसरा वरदान मांगा था कि यहाँ एक मुंड, यानी मुंड की मतलब लाश यहाँ जलाई जाती है। जो आपने आगे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर मोक्षधाम, विष्णु मोक्षधाम लिखा हुआ है। भगवान विष्णु का चरण जो विष्णु मत मंदिर के नीचे ही मोक्षधाम है। और जो ये शहर का नाम होने चाहिए वो गया होने चाहिए, हमारे नाम पर होने चाहिए। तो गयासुर नाम का जो राक्षस था उसी के नाम पर ही जो शहर जो बसा उसी के नाम पर गया रखा गया। एक मानता है और बाबू की इस जगह का नाम लोग संबोधित करके बुलाते हैं और सब शहर का जी नहीं लगाया जाता, गया जी बोला जाता है। नाम है गया लेकिन उसको बोलते हैं गया जी। इसका भी एक मानता है, क्योंकि अपने पूर्वजों को कोई अनादर करके नहीं बुलाते हैं, इसीलिए अपने पूर्वजों का स्थान को जी लगाते हैं, गया जी। और यहाँ जो पिंडदान करते हैं उनके जो पूर्वज होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनके कुल में जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो भी भाग्यशाली लोग होते हैं। कहा गया कि जिनका पितृदोष लगाओ, जिसके घर में वंश का वृद्धि नहीं होती है, घर में कलह हो रही है, जॉब नहीं लग रहा है, ये सब पितृदोष का कारण है। और यहाँ पिंडदान करने से उनका पितृदोष जो है समाप्त हो जाती है। ये सिर्फ पितृपक्ष में करा जाता है या साल में कभी भी कर सकते? कभी भी कर सकते हैं, सालों में यहाँ पिंडदान होती है। क्योंकि गयासुर ने मांगा था कि हर दिन एक पिंड होनी चाहिए, तो इस वजह से पितृपक्ष इसलिए प्रसिद्ध है कि पितृ का लग्न है। ये 15 दिन जो होता है ना, ये लग्न होती है। कहा गया कि भगवान जो एक 15 दिन का जो है स्वर्ग का 4 द्वार जो है खुला रहता है। स्वर्ग का जो 4 द्वार होता है सारा खुला होता है, और इसीलिए पितृपक्ष का लग्न दिया गया है। 15 दिन पितरों के नाम से दिया गया। और इसमें थोड़ा सा विशेष जो है, कोई पूजन पाठ जल्दी नहीं चलती है, ज़्यादातर पितृ का ही कार्य चलता है। जैसे पिंडदान हो गए, भोजन हो गए, दान हो गए, पितृ के नाम से दान हो गए, अन्न वस्त्र दान करने वाले होते हैं। समस्त मातृदेवता, पितृदेवता, गुरु, ससुर, बंधु, वर्ग आदि नाम और 121 कुलों के नाम से आप पिंडदान आपने किया। और 121 कुल में जो भी आपका भुला चुका होगा वो लास्ट में एक पिंड उनके नाम से आपने दिए, ठीक ना। और उसके आप उसी श्राद्ध के माध्यम से आपका सारे जो परिवार हैं, जितने भी आपका माने पितृजन हैं, आपके माध्यम से किसी ने आपके साथ अगर हवा के रूप में या किसी भी विधि व्यवस्था के रूप में आए होंगे तो आपने इस संस्कार करने से उनका उद्धार हो जाएगा। जिनका नाम हम नाम नहीं जानते हैं, जिनका भूल चुके हैं नाम, या 121 कुल तक लोगों नहीं जानते। बाबा परबाबा विद परबाबा, मामा परमामा विद परमामा, इतना तक लोग जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं कोई जानते। मतलब यहाँ की जो विधि है उससे 121 कुल तक का, और एक जाति में 7 गोत्र होते हैं, मतलब 7 गोत्र और 121 कुल तक का। हाँ, अपने कुल के साथ साथ नाना नानी कुल, सास ससुर कुल, गुरुकुल, और जो है इष्ट मित्र कुल। आपका घर में कोई पशु पक्षी मर जाए तो उसका भी संस्कार होती है। घर में अगर घर में बच्चे माने खराब हो जाते हैं, उसका भी संस्कार होती है। ऐसा कर्म यहाँ गया जी में दिया गया है। अगर 3 महीने का गर्भ में अगर कोई बच्चा बर्बाद हो जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, एबॉर्शन हो जाता है, उसका भी संस्कार करने का है गया जी में। और आके लोग करते हैं 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 3 महीने का संस्कार होती है गया जी में। और जो पशु पक्षी, हाँ, पशु पक्षी कीट पतंग घर में जैसे पालते हैं,
तोता, मैना, बिल्ली, कुत्ते पालते हैं तो उनका और भी गाय बछड़ा ये सब पालते हैं। अगर वो उसका मर जाता है उसका भी यहाँ संस्कार किया जाता है। घर में कोई नौकर चौकर मर जाता है उसका भी संस्कार किया जाता है। उसके नाम से भी जल पिंड लोग देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो लोग डॉग लवर्स हैं या फिर पेट लवर्स हैं, तो उनके पेट जाने के बाद में वो भी अगर चाहे तो यहाँ आके उनके नाम पे पिंडदान कर सकते हैं। और नौकर चाकर तो वहाँ अपने कुल से नहीं होते हैं, तो उनका फिर भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आपके साथ वो रह रहे हैं तो एक परिवार की रिलेशन बन जाता है उनसे। हाँ, और उनका भी संस्कार, अगर उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं गया जी में आकर पिंडदान करने के, तो मालिक के आप हैसियत से आप उसका पिंडदान यहाँ आकर कर सकते हैं। আশা কৰোঁ মই আৰু নীতিশ গয়াজিত আহি পিণ্ডদান কৰাৰ মহত্বটো আপোনালোকক সকলোকে আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ পূজা সমাপ্ত কৰি পিণ্ডবোৰ লৈ জয় শ্ৰী ৰাম চেণ্টিং কৰি আমি ফাল্গু নদীৰ ঘাটলৈ গৈ আছোঁ। পিণ্ডদান কৰাৰ অন্তিম চৰণখিনিত মনটো একদম যেনবা ৰখি গ'ল আৰু চকুৰ পৰা পানী বৈ আছিলে। নীতিশে আমাৰ গোটেই পিতৃবোৰৰ কাৰণে আনা পিণ্ডখিনি নদীত অৰ্পণ কৰি দিলে। ইয়াতে মান্যতা আছে, যদি আমি ইয়াতে আহি পিণ্ডদান কৰোঁ 121টা কুল আৰু 7টা গোত্ৰৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকক যদি এনেকৈ ভিডিঅ' ভাল লাগে মোক আৰু নীতিশক ছাপোৰ্ট কৰিব।